Good morning, students. So now that we have got all our lectures online, all the lectures will be in the recorded form and I'll be uploading them on YouTube. After which I'll be sharing a link on in your respective WhatsApp groups. अगर आप वो lecture देखो, अच्छे से समझो, अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, you all can contact me. You can either post a question on that particular video, or you can contact me on WhatsApp. I will make sure that all your queries and all your doubts are cleared. So yeah, in this particular recorded lecture, we'll be starting with new chapter, that is Kingdom Animalia. Now, all the animals, like all the species of animals, आर क्लासिफाइड. एंड ये क्लासिफिकेशन क्यों होता है? ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर स्टडी के लिए, सारों के फीचर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने में आसानी हो. इसीलिए द एनिमल्स आर बीइंग क्लासिफाइड, एंड द एनिमल्स आर बीइंग क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. सो दो ग्रुप्स हैं, एंड फिलहाल के लिए यू जस्ट हैव टू रिमेंबर single point for those two groups. So the two groups are non-chordates, and the another one is chordates. So non-chordates, as the name says, non-chordates. So your animals will be not having notochord. Notochord मतलब backbone. जो backbone होता है वो यहाँ पे absent होगा, whereas in chordates notochord will be present. सो यहाँ पे नोटोकॉर्ड विल बी प्रेजेंट. सो फिलहाल के लिए आपको खाली यही एक पॉइंट याद रखना है. लेटर ऑन यू विल गेट टू नो द फर्दर डिफरेंशिएशन बिटवीन टू. So as of now, you just have to remember non-chordates and chordates are classified on the presence or absence of notochord. And now let us talk about the criteria for classification. Criteria मतलब basis, किस हिसाब से animals are being classified. तो criteria जो है वो सबसे पहला वाला criteria ये है animal body plan. Depending upon the body plan of animals, animals are being further classified into three groups. So उसमें सबसे पहला वाला है cell aggregate body plan. Cell aggregate body plan. फिर second वाला है blind sac body plan. And the third one and the last one is called as tube within tube body plan. I'll quickly explain these three, showing you images. I've got images in my laptop. I've downloaded them, so pay attention. So, tube within tube, first one, which is a cell aggregate body plan. Cell aggregate body plan, I'll just show you guys an image. So, cell aggregate body plan ये है. इसमें you all can see the cells are further not differentiated into tissues. Now generally क्या होता है, cells जब इकट्ठा होते हैं वो टिश्यूज़ बनते हैं. टिश्यूज़ इकट्ठा होने के बाद वो ऑर्गन्स बनते हैं. ऑर्गन्स इकट्ठा होने के बाद वो ऑर्गन सिस्टम बनता है. एंड ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ आता है तब वो एक ऑर्गेनिज्म बनता है. बट ओवर ईयर सेल्स हैव नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू टिश्यूज. सेल का डिफ्रेंशिएशन आगे टिश्यूज में हुआ ही नहीं है, तो उसकी वजह से वो सेल्स सेलुलर लेवल पे ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होगी. यहाँ पे टिश्यू लेवल पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होगी ही नहीं. टिश्यू के आगे जितना भी डिफ्रेंशिएशन होगा वो सारा एब्सेंट है. सो दिस इज इन सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. Then the next body plan, which is blind sac body plan. I have an image for blind sac body plan also. So yeah, this is the blind sac body plan. In this particular image you all can see there is only one opening, that is the mouth. There is no opening over here. Anus करके कोई opening है ही नहीं. So mouth is the opening through which food will be ingested inside also, and the food after being digested will be egested outside through mouth only. So यहाँ पे एक ही ओपनिंग है विच इज़ कॉल्ड एज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ब्लाइंड सैक इसीलिए क्योंकि दूसरा जो है वो डेड एंड है. देर इज़ नो टू ओपनिंग. There are no two openings. Okay. The third one is the tube within tube body plan. The tube within tube body plan. Okay, here you all can see mouth and anus. There are two openings. So there is a tube. उसके अंदर दूसरी ट्यूब है और वो ट्यूब के दो हिस्से हैं, दो एंड्स हैं. एक माउथ है और एक एनस है. मतलब खाना एक एंड से आएगा, डाइजेस्ट होगा, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होगी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब होंगे, और जो चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड होगी वो एनस के थ्रू बाहर जाएगी.
सेकेंड वाले में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में इजेशन और डाइजेशन और इजेशन और इंजेशन दोनों एक ही एंड से होते थे, यहाँ पे इजेशन और इंजेशन जो है वो अलग अलग एंड से होंगे. सो दिस इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. सो ये हो गए हमारे फर्स्ट क्राइटेरिया. सेकेंड क्राइटेरिया हमारा बॉडी सिमेट्री है. नाउ यू मस्ट हैव हर्ड सिमेट्री, अबाउट सिमेट्री समवेयर इन मैथ्स. सो बॉडी सिमेट्री का मतलब क्या होता है? बॉडी सिमेट्री मतलब एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने के अलग अलग जरिए. नाउ यू कैन सी ओवर हियर बॉडी सिमेट्री में 3 ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई दे रहे हैं. सबसे पहला वाला बायलैटरल देखते हैं. एक हाउस फ्लाई को हम अगर एक एंड से एक प्लेन से कट करें तो हमें 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे. सो उसको बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं. फिर रेडियल सिमेट्री में एक ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग एक से ज़्यादा प्लेन्स में कट कर सके और हमें इक्वल हाफ्स मिले. अभी हाउस फ्लाई को आप लोग एक ही प्लेन से कट करोगे तो आपको इक्वल हाफ मिलेंगे, या फिर आप हॉरिजॉन्टली करते हो या फिर वर्टिकली करते हो, एक ही प्लेन से कट करोगे तो 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे. बट रेडियल सिमेट्री में एक से ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेन से अगर हम लोग उनको डिवाइड करेंगे तो हमें इक्वल हाफ्स मिलेंगे. then we get equal halves. So that is called as radial symmetry. Whereas in asymmetrical में organism को हम लोग कितने भी कोई भी प्लेन से डिवाइड करें, अगर हम लोगों को इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे तो दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल. सो दैट वाज द सेकेंड क्राइटेरिया. उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया इज अपॉन द बॉडी कैविटी. डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी कैविटी एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. सी ओसिलमेट, सूडोसीलमेट एंड सीलमेट. ये तीनों हिस्से हैं. सीलम मतलब बेसिकली कैविटी. सीलम ओवर हियर मतलब कैविटी. सो जिन ऑर्गेनिजम्स में कैविटी होंगी, हॉलो कैविटी होगी, उसको सीलमेट बोलेंगे. जिसमें नहीं होंगी, यहाँ पे ये जो कैविटी है दैट इज़ नॉट हॉलो, दैट इज़ फिल्ड अप, सो उसको सूडो असीलमेट बोलेंगे. एंड सूडो मतलब फॉल्स कैविटी, मतलब कैविटी है बट इट इज़ फिल्ड विथ फ्लूइड. सो दैट इज कॉल्ड एज सूडोसीलमेट. सो ये 3 क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी. उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया जो है वो जर्माइनल लेयर्स पे है. नाउ देर आर 3 जर्माइनल लेयर्स. जर्माइनल लेयर्स मतलब ऐसे लेयर्स जिससे हमारे पूरे बॉडी का system बना है. So these are the layers through which entire body is formed. So see, you all can see ectoderm, mesoderm and endoderm. Ectoderms form the outer skeleton, mesoderm forms the internal organs and endoderms form the inner differentiation of the organs. So जो organisms इन तीनों लेयर से बने हैं उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे. I'll just quickly write down so that you get an idea of whatever I'm talking. So 3 जर्माइनल लेयर्स हैं हमारे बॉडी में. एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. तो जो एनिमल्स इन तीनों लेयर से बने हुए हैं उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे. ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लो मतलब 3, ब्लास्टिक मतलब जर्माइनल लेयर्स. एंड जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ 2 लेयर्स से बने हुए हैं मतलब एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म आर कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स. सो ये था हमारा और एक क्लासिफिकेशन. द लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज द सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन मतलब कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो अगर कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ है तो उसको सेगमेंटेशन बोलेंगे, और अगर नहीं हुआ है तो उसको नॉन सेगमेंटेड बोलेंगे. नाउ हियर यू ऑल कैन सी इन द फर्स्ट इमेज पेरीपेटस देयर इज नो सेगमेंटेशन, देयर आर नो कंपार्टमेंट्स, whereas in the second image of the millipede there are compartments. The entire body is made up of small fine divisions. हिस्से में बटी है, कंपार्टमेंट्स में बटी है. So this is segmentation. These are segmented and these are non-segmented. So ऐसे करके हमारे एनिमल के क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया थे. ये सारे क्राइटेरिया थे. देन वील बी स्टार्टिंग विद द एक्चुअल क्लासिफिकेशन. एंड उसमें क्लासिफिकेशन में सबसे पहला वाला जो क्लास है, सबसे फर्स्ट वाला जो क्लास है, आई मीन नॉन कॉर्डेट्स का सबसे पहला वाला जो क्लास है वो है पोरीफेरा. सो फाइलम पोरीफेरा, फर्स्ट फाइलम, फर्स्ट group, phylum is basically group, is called as Porifera. Now these Porifera
are also called as pore bearing organisms. Pore bearing organisms या pore bearing animals. So the first point for poriferans is that these are aquatic animals. These are aquatic matlab entirely they live in water. Now some of them are marine. Marine matlab they'll be living in sea water or ocean water. Why? Basically they need hard water, salty water, and some of them are fresh water. Fresh water meaning some of them will be living in सॉफ्ट वाटर मतलब मीठे पानी में. सो कुछ खारे पानी वाले हो गए, कुछ मीठे पानी वाले हो गए. देन सेकेंड पार्ट इज दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पॉन्जेस. उनको स्पॉन्जेस इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दे हैव गॉट लॉट ऑफ pores, they have got lot of openings on their body. Their entire body is made up of small minute pores. That is why they are called as sponges. Uske baad third, they are asymmetrical. Now this particular point I'll be showing you in an image. Uspe se you all will be able to make out that if they are symmetrical or asymmetrical or radially symmetrical. So as of now मैं खाली ये point ऐसे ही लिख रही हूँ, they are asymmetrical. Then next, they are sedentary animals. Sedentary animals मतलब living in one place, attached, एक जगह से अटैच, किसी चीज़ से अटैच. सो ये एक बेस से सबस्ट्रैटम से अटैच्ड होते हैं. सबस्ट्रैटम किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो रॉक हो सकता है, कोई सीबेड हो सकता है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उससे अटैच रहेंगे, इसीलिए ये सेडेंटरी है. नाउ सेडेंटरी होने की वजह से इनमें डिफेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा. कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? बिकॉज जो प्रीडेटर्स होंगे जो इनको खा सकते हैं एनिमल्स, अभी ये तो भाग नहीं सकते बिकॉज दे आर सेडेंटरी, दे आर अटैच. सो इसीलिए इनके पास डिफेंस के लिए इनके पास स्पिक्यूल्स होंगे. स्पिक्यूल्स आर प्रिकी थिंग्स, कांटे जैसे चीज़ होंगे. सो दे कुड बी आइदर हैविंग कैलकेरियस स्पिक्यूल्स और दे कुड बी हैविंग स्पॉन्जिन फाइबर्स. अभी ये स्पॉन्जिन फाइबर्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं. ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं? जब भी कोई प्रीडेटर इनको खाने आएगा तो ये टॉक्सिन्स, ये जो फाइबर्स है ये टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे जिससे सामने वाला ऑर्गेनिज्म वही के वही फ्रीज हो जाए, वो टॉक्सिन उसमें स्प्रेड हो जाए. दूसरी बात, इनमें फ्लैजेला भी होता है. ये फ्लैजेला खुद का एक तो डिफेंस ऑर्गन भी है, एंड दूसरी बात इट इज़ गोइंग टू क्रिएट वाटर करंट्स. वाटर करंट्स क्रिएट होने से इनको खाना मिलते रहेगा. पानी के साथ जो भी डिजॉल्व फॉर्म में या अनडिजॉल्व फॉर्म में खाना होगा, स्मॉल फिशेस वगैरह होगी, वो खा सकेंगे. Okay, now the next point is that these organisms, I told you, they are called as pore bearing organisms because they've got lot of minute pores on their body. Now, and these minute pores are called as ostia. These minute pores are called as ostia. अभी बहुत सारे ऑस्टिया होते हैं. अभी जिनमें वाटर एंटर करता है, जब वाटर उनकी बॉडी में एंटर करेगा, जिस पोर से बॉडी वो वाटर एंटर करता है, उसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं. उसको स्पॉन्जोसील बोलेंगे. एंड वाटर जहाँ से एग्जिट करेगा, बाहर जाएगा बॉडी के, उसको ऑस्क्यूलम बोलते हैं. उसे ऑस्क्यूलम बोलेंगे. So there are a lot of openings, pores which are called as ostia. Water which enters through the opening is called as spongocoel, and water when exit outside is called as osculum. सो पोर बेरिंग ऑर्गेनिजम्स है, इसीलिए उनको स्पॉन्जेस भी बोलते हैं. नेक्स्ट, नाउ दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली एंड एसेक्शुअली ऑल्सो. दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्शुअली एज वेल एज एसेक्शुअली. एंड एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो आइदर फ्रैगमेंटेशन से होगा या फिर गेम्यूल फॉर्मेशन से होगा. फ्रैगमेंटेशन मतलब कि ऑर्गेनिज्म अगर फ्रैगमेंट्स में बट गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, तो हर एक टुकड़ा नया ऑर्गेनिज्म बनने का कैपेबिलिटी रखता है. दैट इज़ फ्रैगमेंटेशन. और इट कुड बी थ्रू गेम्यूल फॉर्मेशन. गेम्यूल फॉर्मेशन मतलब जैसे प्लांट्स में बड फॉर्मेशन होता है वैसे ही गेम्यूल फॉर्म होता है. मान लो ये ऑर्गेनिज्म है छोटा सा, एंड ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक छोटा सा आउटग्रोथ आया है. ये आउटग्रोथ बड़ा होगा. दिस आउटग्रोथ विल टेक द नरिशमेंट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, parent animal, and then once it is able to live on its own, it is going to detach itself from the parent body and then it will live on its own. So that is called as gemule formation.
Okay, so reproduction was through fragmentation और gamule formation. Sexual reproduction जो होता है उसमें fertilization होगा वो internal होगा, मतलब fusion of male and female gametes will be internal inside the organism's body and not outside, not external. Then last point is they have got an amazing capacity for regeneration. Regeneration मतलब for an example I can give you all. You have seen the lizard's tail which is being cut, so that lizard is able to regenerate a new tail. So similarly यहाँ पे भी organisms अगर उनका accidentally उनका कोई body का part टूट जाता है तो वहाँ पे उनको नया body part आ सकता है. That is called as regeneration. So they have got an amazing capability of regeneration. So these were the points. You are not supposed to mention those points which I haven't mentioned, because I have mentioned only those points which are relevant for 12th. So वही points आप लोग पढ़ोगे तो भी चलेगा. अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप कर सकते हो, बट अगर आपने यही points लेके तो भी काफ़ी हो जाएंगे. Now talking about phylum Porifera's examples, I'll show you. I've downloaded few images on my laptop. I'll just show you the images. Poriferans. So yeah, these are the organisms. These are poriferans. Yes, these are poriferans. You all can see you all can see lot of pores on their body, and they have got openings also. You all can see over here openings bhi hai yahan pe, and they have got small pores. सो ये पोर बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स हैं. फिर तीसरा यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये रहा, ये भी एक पॉरीफेरन है. छोटे छोटे पोर्स है सब जगह में. देयर एंटायर बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल पोर्स, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज पोर बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स. आप लोगों को एग्जाम्पल्स में स्काइफा, यूस्पॉन्जिया, नाउ दिस इज यूस्पॉन्जिया, आई विल शो यू. दिस इज यूस्पॉन्जिया, फिर यूप्लेक्टेला, दिस विच आई हैव शोन यू ऑल, दिस इज यूप्लेक्टेला. This is Euplectilla, which is also called as Venus's flower basket. And this is Euspongia. And this is Scapha. So ये examples हैं. आप लोग ये examples involve कर सकते हो. किसी भी each and every phylum that you are going to learn, please do not forget to mention at least 2 examples. So whatever easier, whichever 2 examples easier you find, please mention those 2 examples. Yeah, so these are poriferans. You all can look at, you all can Google also the images. Okay, यहाँ पे you need not draw the diagrams यहाँ पे नहीं आएंगी, only description part and the examples part. So that's all. I will be continuing with phylum Coelenterata of Cnidaria, जो next phylum है, in the next lecture. That's all. And if you have got any kind of doubt, please do not forget to post a question या फिर contact me. Yeah, okay. Thank you. That's all for today. See you in the next lecture.